हेलो। جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بولیے. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا کرم. کون بول رہے ہیں آپ؟ عبدالحکیم بول رہا ہوں میں، عبدالحکیم صاحب کہاں سے؟ یو پی سے، یو پی میں کہاں؟ ٹانڈا، امبیڈکر نگر. اچھا جی، فرمائیے کیا بات ہے؟ ابھی وہ حافظ شفیع اور نور الحسن سے بات ہوئی ہے تو لوگ بات نہیں کر پا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. نور الحسن سے بات ہو رہی ہے؟ بات ختم ہو گئی، اب بات نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا، نور الحسن کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. کس سے بات ہو رہی تھی؟ کوئی میری بات ہو رہی تھی. کوئی ہے وہاں کے ہلدوائی کے گجر علاقے کے، گجر بستی. ہاں 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 تو ان سے میں نے کچھ ایک سوالات پوچھے تھے کہ جیسے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 فرائض ہیں. ہاں. ان میں سے کسی ایک فرض کا انکار کر دے تو کیا مسلمان رہ جائے گا؟ کافر ہو جائے گا فرائض کا انکار کرنے والا. کافر ہو جائے گا. تنویر الحجہ میں مصطفیٰ رضا خان اور 50 علماء نے حج کے التوا کا حکم دے دیا ہے، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اس کا کون سی کتاب میں لے ہو؟ تنویر الحجہ. ہاں. اس میں مصطفیٰ رضا خان صاحب اور 50 سید علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی التوا کا آرڈر دے دیا ہے مصطفیٰ رضا کے ذریعے. ابھی جن 50 کہاں لوگوں، لکھا ہوا ہے؟ تنویر الحجہ. کیا کتاب کا عبارت پیش کیجیے. میں کتاب پیش کر دے رہا ہوں، ابھی پیش کر دے رہا ہوں. واٹس ایپ کیجیے. واٹس ایپ کر دیتا ہوں. اس نمبر پہ واٹس ایپ ہے؟ ہاں اس نمبر پہ واٹس ایپ ہے. میں بھیج دے رہا ہوں، ترنت بھیج دے رہا ہوں. تو اس کو پڑھے، اس کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد تو بات کریں. آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کون سی جماعت کی؟ اب اس کو آپ دیکھ لیجیے، اس کے بعد تو بات کریں. ہاں. ہلو 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 ہلو. ہلو السلام علیکم. السلام علی من اتبع الہدی. اچھا یہ بتائیے، کون صاحب بول رہے ہو؟ کون صاحب بول رہے ہو؟ آپ نے کال کیا تھا دوپہر کو. ارے تو بولتے رہو نا، کال تو ہمیں بہت سارے لوگوں کو کیا ہے. جی اب کال تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو کیا، نام تو یاد ہے. نام بتائیے اپنا. آپ؟ میں جلال الدین چشتی بول رہا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں عبدالحکیم بول رہا ہوں. اچھا، کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت و جماعت اس زمانے میں پہچان کیا ہے؟ جو حضور. اچھا آپ بتائیے، اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت جو 1400 سال سے مانا علیہ واصحاب صحابہ اکرام کے نہج پر چلنے والے سواد اعظم ہے، جو 4 مسلک کو حق پر مانے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں مسلک کو حق پر مانے. جیسا بھارت میں زیادہ تر حنفی ہے، اور حنفی میں پھر آہستہ آہستہ یہ جا کر اہل سنت سے ہٹ گیا ہے دیوبندی. تو اس کے خلاف جو ہے دیوبند کے کفریات کے خلاف اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت کو حق پہ ماننے والے اہل سنت ہم سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، تم کو اہل سنت مانتے ہیں؟ اچھا تم پھر کس کو اہل سنت؟ علماء دیوبند کو اہل سنت مانتے ہو؟ نہیں، پہلے بات سنت دھیرے سے. جو حضور اور صحابہ کے طریقے پہ چلے وہ اہل سنت والجماعت ہے. ہاں. تو امام اہل سنت کون ہے؟ امام اہل سنت، امام اہل سنت جو ہے اس وقت ہمارے علماء اہل سنت کے امام اہل سنت میں بتاؤں، ایک آدمی ہوگا جو امام اہل سنت ہوگا. یہ ہمارے اس وقت کے ہمارے بڑے عالم امام اہل سنت. ایک آدمی نام ہوگا امام اہل سنت. امام ایک ہوتا ہے، مقتدی بہت ہوتے ہیں. ہاں. تو امام ایک آدمی ہوتا ہے. امام اہل سنت کون ہے؟ امام اہل سنت. اضافت آپ صحیح ادا کیجئے. ہاں، امام اہل سنت کون ہے؟ ہاں، تو امام اہل سنت علامہ عزت رضا خان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام الانبیاء ہے. نہیں، امام اہل سنت نہیں ہے. سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت جو آیا ہے. تو اگر امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب ہے تو حضور کیا ہوئے؟ تو صحابہ کے دور میں صحابہ کے جو امام تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، امام دیکھو
अरे जिसके सुन्नत, पीछे हम, अरे यार रुको 1 मिनट, रुक जाइए। तो आप तय करें, 2 मिनट बात करें, आप अरे मौजू नहीं, तय हाँ करें, ठीक है, मैं बात मौजू करता तय हूँ। करें, 2 मिनट आप बात करेंगे, 2 मिनट मैं बात करूंगा। अच्छी बात है। पहले आप अहले सुन्नत की इस वक्त कोई अलामत बताएं जो आपके जमात के कोई बड़े आलिम, जैसा मैं ही बताया कि हमारे जमात के बड़े आलिम आला हजरत के शहजादे अल्लामा अजद रजा खां हुजूर ताजुश शरिया के बेटे, हमारे बड़े आलिम, ऐसा आपके कोई बड़े आलिम का नाम बताएं, उसके बाद गुफ्तगू शुरू होगी। कोई आलिम इमाम अहले सुन्नत नहीं हो सकता है। इमाम अहले सुन्नत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जमात सहाबा इकराम की जमात। जब बताया गया 72 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, तो सहाबा ने पूछा कि 72 जो है वो नारी होंगे, एक जो है नाजी होगा, मतलब निजात पाने वाला। तो सहाबा ने पूछा उस एक फिरके की अलामत बताइए। आपने फरमाया मैं और सहाबा जिस जमात पे हूँ, यानी अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत से मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वल जमात से मुराद सहाबा इकराम है। जो हुजूर और सहाबा इकराम के तरीके पे चलेगा वो अहले सुन्नत वल जमात होगा। तो हुजूर जो इमाम अहले सुन्नत है, तो दूसरा इमाम अहले सुन्नत कहाँ से पैदा हो गया दूसरे? आपकी बात हो गई। हाँ हो गई। तो सहाबा इकराम इमाम अहले सुन्नत हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नहीं, इमाम अहले सुन्नत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कोई नहीं। आप मुकम्मल बोल लिया, मुझे नहीं, आप बोलने बात देना। मैं बताया ना, अहले सुन्नत वल जमात आप से बताए तो हो गई ना, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं देंगे? बोलो। तो मैं भी 2 मिनट, मैं बोला ना 2 मिनट बात करूंगा, आप बिल्कुल खामोश रहेंगे। 2 मिनट होने के बाद आप अपनी बारी में बोलेंगे, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको याद रखेंगे। 2 ड्यूटी आपकी, आप अपनी बारी में मुकम्मल एक टॉपिक छोड़ के बात नहीं करेंगे और मेरी गुफ्तगू पूरा मुकम्मल याद रखेंगे और उसी का जवाब देंगे, और मैं भी आपके गुफ्तगू सुनूंगा, याद रखूंगा, उसका जवाब दूंगा। मैंने आपसे कहा आपकी पहचान, आपने कहा अहले सुन्नत, और आपने खुद कहा कि 73 फिरके होंगे, एक फिरका नाजी होगा, पूरे 73 फिरके वाले खुद को अहले सुन्नत कहते हैं। तो अब हम अहले सुन्नत की एक पहचान आपसे पूछा, आपने वो पहचान नहीं बताया। आपकी जमात का कोई बड़े आलिम, जैसा मेरा एक आलिम बताया, तो ऐसे आपके जो सबसे बड़े आलिम हो आपकी जमात में इस वक्त जिंदा हो, उसको आप इमाम अहले सुन्नत कहे या ना कहे। आपकी जमात का कोई बड़े आलिम का नाम पूछा तो आपने नाम नहीं बताया, तो आपको पहचानूंगा कैसा, क्योंकि 73 फिरके वाले खुद को अहले सुन्नत कहते हैं। तो अहले सुन्नत आप कहने से बात मुकम्मल नहीं हुई। आप ये बताएं आपकी पहचान क्या है, आपकी जमात के बड़े आलिम का नाम क्या है, और दूसरे जमात से आपके फर्क क्या है, आपको कैसे पहचाने अहले सुन्नत, आप ये बताएं पहले। आपकी बात हो गई। हाँ, कोई आलिम हो, कितना बड़ा आलिम हो, अगर वो हुजूर और सहाबा के तरीके से हटा हुआ है तो सही नहीं है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उनका मुत्तबे और पैरवेकार तो हो सकता है, इमाम नहीं हो सकता है। आप लोगों ने हुजूर को छोड़कर अहमद रजा खान साहब को इमाम अहले सुन्नत मान लिया, यानी हुजूर की रसालत से आपने इनकार कर दिया। आप कैसे सही रास्ते पे हो सकते हैं? बोलिए आगे। बात हो गया। मैंने पूछा आपकी जमात का कोई, आपकी जमात में कोई आलिम है? हमने पहले बता दिया, कोई भी आलिम नबी करीम एक मिनट रुक जाइए यार। कोई भी आलिम इमाम अहले सुन्नत नहीं हो सकता है। इमाम अहले सुन्नत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मुत्तबे हो सकता है। हाँ, तो आपका दूसरी बात मेरे जवाब दीजिए। आप तो फिर अहमद रजा खान साहब को, फिर इमाम अहमद रजा साहब को इमाम अहले सुन्नत क्यों कह रहे? आप लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमात से हट गए। चलिए, आपकी जमात, आपकी अहले सुन्नत की जमात है ना? नहीं, आप फिर अहमद रजा हुजूर को छोड़ के अहमद रजा खान साहब को आपने इमाम क्यों मान लिया? तो आप अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हैं? अब बात हो गई आपकी, ये बात हुई, आपने अहले सुन्नत हमें नहीं मान रहे हैं, आप अहले सुन्नत हैं आपके दावे के हिसाब से। हर वो आदमी अहले सुन्नत होगा जो हुजूर और सहाबा के तरीके पे चलेगा। आपकी जमात के कोई बड़े एक आलिम का नाम बताए। अरे आलिम कैसी, आलिम थोड़ी होता है, उनका अमल परखा जाता है कि हुजूर और सहाबा के तरीके पे हैं कि नहीं है। वो इमाम कैसे हो सकते हैं अहले सुन्नत के? कोई भी आलिम हो, चाहे देवबंदी का, चाहे बरेली का, चाहे अहले हदीस का हो। तो आपकी जमात में कोई आलिम नहीं, क्या पहचान नहीं आपकी जमात किसी? पहचान तो हुजूर और सहाबा हैं। एक ऐसे आलिम हो जो सारी दुनिया पहचानते हो, जैसा मैंने हमारे जमात का आलिम का नाम बताया तो आप पहचानते, तो इसी तरह आपकी जमात का कोई ऐसे आलिम हो जिसको लोग पहचानते हो। अब एक मिनट ऐसा है कि हमारे यहाँ नमाज का वक्त हो रहा है, अब नमाज के बाद फिर फोन करते हैं।
नहीं नहीं, आप बताइए आपकी जमात अभी का कोई आलिम का मैं नाम इस बताइए। पर बात करता हूँ, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपसे नमाज आप पर फर्ज नहीं है, आप काफिर हो, आप पर नमाज फर्ज नहीं है। ठीक है, आप फर्ज पहले नहीं है ईमान में दाखिल हो, वो उसके चीज बाद नमाज पढ़ो। अभी मैं बताऊंगा आप कौन काफिर कौन आप मुसलमान काफिर है। हो। आपण ज्या व्यक्ती हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अच्छा अब्दुल हकीम साहब, जी, आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ, जो आपसे बात हुई थी। अच्छा ठीक, लेकिन आपको दूसरे आपने, नंबर पे किया क्या? हाँ मैं चलो आया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बोलो। अभी आप अब मुझे कॉल किए थे। मैं फुर्सत में इस वक्त हूँ, अगर बात करना चाहें तो करें, वरना सुबह करें। हाँ, इस वक्त मैं बात करने, मैं भी फुर्सत में हूँ, आपसे बात करना चलिए चाहता कर हूँ। लीजिए, अब वहीं से जहाँ से हाँ, वो जहाँ से जो शुरू हुई थी। छूटी थी, हाँ वहीं से मैंने शुरुआत। आपसे पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि आपके कोई एक आलिम बताए। मैंने वो उसका देर जवाब तक आपने नहीं बताया। मैंने उसका जवाब दे दिया है, और उसका वही उसके बात आगे मैं शुरू कर रहा हूँ ना। आप हाँ बिल्कुल, आप मुझे बोलने दिए तो 2 मिनट में दे। बात तो शुरू होगी, तो जहाँ से बात चलिए आपने किया था चलिए उसको रिपीट करेंगे, जब तो ना लोगों को समझ में आएगा बात चलिए। यहाँ से शुरू हाँ हुई। हाँ तो आपने कहा कि इमाम काबा आपके आपके बड़े मशहूर आलिम है। हाँ, तो इमाम काबा का जो अकीदा है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इमाम काबा नजदी है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का मानने वाला है। इब्ने अब्दुल वहाब ये नजदी कैसे ने आपको नबी पता चला? मुकर्रम आप को, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी तो 1922-23 में था, और 100 साल के बाद इमाम आए हैं। इनके अकायद कैसे हैं आपको मालूम है? अभी 1922 में जब इनका कब्जा हुआ, 1922, 23, 24, 3 साल तक जंग हुई, हाँ और बरतानिया की मदद से मुसलमानों के खिलाफ जंग करके हाँ, तुर्की हुकूमत को हटाकर ये कब्जा किए। चलो और जब ये अब्दुल वहाब नजदी आले सऊद का साथ दिया, आले सऊद को हुकूमत पे बिठा के अब्दुल वहाब नजदी ने अपने मसलक का प्रचार किया। और जब से आज तक वही हुकूमत है। आले सऊद का हुकूमत आज भी कायम है, 1922 में भी कायम था। और आले सऊद को इब्ने अब्दुल वहाब नजदी सपोर्ट करके हुकूमत पे बिठाया। तो आले सऊद है ना, जी। अब्दुल वहाब नजदी, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का सपोर्टर है, उसके अकीदे का फॉलोवर है और उसका प्रचारक है। और तो वो अब अकीदे के फर्क एतबार हुआ, से वो काफिर है? इब्ने अब्दुल वहाब नजदी काफिर है, इमाम काबा उसी अकायद के हैं, इमाम तो काबा भी काफिर है। इमाम काबा काफिर हैं, इनके पीछे नमाज तो जायज नहीं होगी? बिल्कुल जायज नहीं। कुरान क्या कहता है कि यहाँ पर कोई मुशरिक आने न पाए, अगर आ गया है तो उसको हिफाजत की जाए। जी, कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है? इस इलाके में कोई मुशरिक आने न पाए, कोई काफिर आने न पाए हुदूद हरम में। हाँ, तो अगर इमाम काबा काफिर है, तो उस काफिर को हटाने के लिए कुछ कोशिश किया आपने? तो हम जितना हम हो सके हम कोशिश क्या किए। करें? नहीं नहीं, कुरान क्या कहता है जरा बताइए। कुरान क्या कहता है? मस्जिद हम काफिरों से पाक रखे। हैं? जब हमारे जितनी ताकत थी, हाँ आप जैसे लोग हमारे साथ नहीं दिए, अच्छा, वरना तो तमाम मुसलमान एक मिनट, आपके नजदीक इमाम काबा काफिर है, इमाम मदीना वो किस ख्याल के हैं? इमाम जितने आले इमाम, सऊद का पूरे अरब पर कब्जा है। एक ठीक बात है, मुकम्मल आप सुनिए, यहाँ रुक आप जाइए। जल्दबाजी ना करें। देखिए, इत्मीनान से बात होगी, आपको इत्मीनान तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जल्दी ना करें, हम 1 घंटा आपसे बात करेंगे, चलिए, आपके हर मसाइल का तसल्ली बख्श जवाब देंगे। आप अच्छी बात इत्मीनान है, से सुने, अच्छी जब मैं बात है। बोलूं आप खामोशी से सुने, जब अरे मैं चलिए बोलिए खामोश हो साहब, मैं जाऊं खामोश हूँ, आप चलिए। बोलने लगे। हाँ चलिए। आप अपनी बात मुकम्मल रख सकते हैं, कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। बीच में हमारे सैयद आसिफ भाई हैं लाइन पे, अगर मैं गलत बोलूं तो सैयद आसिफ भाई मुझे रोक देना, अरे भाई ठीक है? बात करो, इतना लंबा लंदी खींचने की जरूरत नहीं। लंबा नहीं, आप भी लंबा बात कर सकते हैं, जितनी लंबी आप चाहे बात करें। अरे कोई बात गलत करो, बात आप कहेंगे इधर उधर की मसाइल जो सीधी बात है उस पे करो। चलिए, इमाम आप मदीना सीधी क्या बात है? आप कीजिए ना। इमाम मदीना क्या है? सारे जितने वहाबी हैं सब काफिर है। काफिर, और जो अच्छा इस्माइल देहलवी, इस्माइल दहलवी काफिर है। और काफिर को जो काफिर ना कहे वो भी काफिर। काफिर को जो काफिर ना कहे वो भी काफिर है। इस्माइल देहलवी को अहमद रजा काफिर नहीं कहते, तो अहमद रजा काफिर। हाँ, तो काफिर आला हजरत ने उस वक्त, सुनो, इसका वजर अगर वजर हो तो अलग मसला होता है। उधर क्या है? जो तो मैं आम बात बयान किया, काफिर को जो रुक जाइए, आप कहते हैं काफिर को जो काफिर नहीं कहे वो भी काफिर।
احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتے، تو آپ کے اعتبار سے احمد رضا خان کافر ہیں؟ ہاں تو بات سنو، بات یہ ہے کہ ایک بات مشہور ہوئی تھی، اسماعیل دہلوی نے توبہ کیا یا نہیں، اپنی ساری غلطیوں سے توبہ کیا بول کر بات مشہور ہوئی تھی، جس کے کہاں ہے؟ بارے میں کس فتاوی چیز؟ رشیدیہ میں یہ بات موجود ہے۔ دکھائیے، بھیجیے فتاوی فتویٰ۔ رشیدیہ میں سوال پوچھا گیا، ایک عام آدمی نے سوال پوچھا رشید احمد گنگوہی سے، کیا اسماعیل دہلوی نے توبہ کیا اپنی غلطیوں سے؟ تو رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا کہ اسماعیل دہلوی نے کوئی غلطی نہیں کیا، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات غلط مشہور ہے۔ تو بات جب غلط مشہور ہے تو جب غلط ہو یا صحیح، مشہور بات کا پہلے تحقیق کیا جائے، اور جب تک تو تحقیق مکمل نہ ہو۔ رشید احمد کو آپ کافر سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی بھی کافر ہے۔ تو کافر کی بات پر آپ اعتبار کریں گے اگر آپ کے نزدیک رشید احمد گنگوہی ایک تو کافر ہے؟ آپ پوری بات میری مکمل بولنے نہیں دے رہے۔ چلیے آپ جو سوال تھا، بات اب رشید احمد گنگوہی کافر ہیں تو ان کی بات کو آپ مانیں گے؟ چلیے کہیے آپ۔ اب میں جو بات آپ بول رہے ہیں ساری باتوں کا جواب دوں گا۔ چلیے جواب سوال تو احمد رضا آپ کے فتوے کے اعتبار سے کافر ہیں؟ ابھی اسماعیل دہلوی کی ڈال پہ سے اٹھ کے آپ ادھر گنگوہی طرف چلے گئے۔ ہاں نہیں، آپ ادھر آئے نا، یہ گنگوہی کی بات تو آپ نے کیا۔ بھائی اطمینان سے آپ بول لیجئے، 2 منٹ۔ نہیں، گنگوہی کی بات تو آپ نے کیا تھا کہ گنگوہی نے کہا کہ وہ توبہ کر لیے ہیں، تو گنگوہی اگر کافر ہے تو ان کی بات کو مانو گے؟ میں نے اس کی بات کا دلیل نہیں دیا، سنیے بات، اطمینان سے بات مکمل سنیں گے تب بات سمجھ میں بس اسی پر ایک بات ہے، اسماعیل دہلوی آپ کے نزدیک ایک ہاں بس ایک رک پہلے جائیے، تو ان سے یہ پوچھو حضرت یہ اہل حدیث ہے کہ دیوبندی رک جائیے بھیا، آپ ذرا رک جائیے۔ آپ کے نزدیک جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر، تو احمد رضا خان بریلوی اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتے، تو آپ کے کہنے کے اعتبار سے احمد رضا خان کافر ہوئے؟ شریعت کے اصول سنیے، کافر کہنے میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے، اور کافر ثابت ہونے کے بعد بھی اس کو کفر سے ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کرنی چاہیے۔ 2 باتیں یاد رکھیے۔ ایک اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ساری باتیں میں بولنے ہی نہیں دے رہا۔ ارے بولو نا، میں پوچھا ہوں اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ایک جو میں اصول بتا رہا ہوں۔ ارے اصول نہ بتائیے، ہم نے یہ پوچھا اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہو، اصول چھوڑو۔ اسماعیل دہلوی کی جب توبہ مشہور ہو گئی، مشہور نہیں، توبہ کس چیز سے توبہ کی، اس کو لکھا دکھائیے، کہاں توبہ ہوئی، کس چیز سے کیا؟ عبدالحکیم صاحب اسماعیل دہلوی نے کس چیز سے توبہ کیا، آپ دکھائیے ہم کو۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کیا دے رہے ہو؟ آپ نے کہا اسماعیل دہلوی نے توبہ کی، کس چیز سے توبہ کی وہ تو پتا ہونا چاہیے اور کہیں لکھا ہونا چاہیے۔ اسماعیل دہلوی جب کتاب لکھا ہے، اس کتاب میں تقویت الایمان میں شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا، شرک اصغر کو شرک اکبر لکھ دیا گیا۔ تو شرک اصغر سے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور شرک اکبر سے اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ جب مسلمان کوئی رہتا شریعت کے اعتبار سے اس کو اسلام سے خارج کرنا کتنا بڑا ظلم ہے مسلمانوں پر۔ آپ نے تو پورے مسلمان توبہ کہاں کیا، کس چیز سے کیا، یہ تو دکھاؤ۔ تب گنگوہی کہہ رہا ہے کہ توبہ کیا، گنگوہی کو آپ مسلمان مانتے نہیں تو اس کی وجہ، ارے دونوں کیا ہے؟ آپ گنگوہی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بدتمیزی آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، گنگوہی کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں جب ان کو مسلمان نہیں مانتے؟ جب گنگوہی کو آپ مسلمان نہیں مانتے تو ان کی بات کیوں مانو گے؟ آپ بولنے تو دیں گے؟ ہاں بس ہوگا، بولو۔ دونوں ایک میں بول کے ارے بھیا میں نے تو یہی پوچھا ہے، جب گنگوہی کو 2 منٹ بولے، یہی نہیں کہ آپ بیچ میں نہیں یہ ایک ساتھ جب دونوں ایک ساتھ بولوں گا، نہیں ہے۔ کیا گنگوہی کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ بولو۔ آپ نہ بولے، میں بات مکمل کر لوں، اسماعیل دہلوی کی بات مکمل کروں، گنگوہی کی بات بھی مکمل کروں، اعلیٰ حضرت کی بات بھی مکمل کروں، اصول بتاؤں، ساری باتیں میری ذمہ داری میں ہے۔ چلیے کرائیے، لیکن بولنے نہیں دے رہا۔ ارے آپ ہی تو بول رہے ہو، میں کہاں بول رہا ہوں، آپ ہی تو بول رہے ہو۔ اصول نہیں ہے یہ، کسی کی بات مکمل۔ ارے بھیا بات تو بول رہے ہو، میں کہاں بول رہا ہوں، بولیے۔ آپ بیچ میں بولیں گے نہیں نا؟ ارے بولیے یار، بے مطلب ٹائم برباد کر رہے ہو، بولیے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو اسماعیل دہلوی کے بارے میں سوال پوچھا گیا۔ سوال کب پوچھتا ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ چاہیے پھر چپ ہو جائیے۔ ارے میں اتنا پوچھ سکتا ہوں، کس سے پوچھا گیا؟ چلیے بولیے، اس میں کس سے پوچھا گیا، اس کا جواب دو۔ پھر آپ بول رہے ہیں، اتنا صبر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی تک بات مکمل ہو جاتی تھی، آپ اگر صبر کرتے بات مکمل آپ کو ہو جاتی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کس سے سوال پوچھا گیا، کوئی بتاؤ اس کا جواب۔
इस्माइल दहलवी के बारे में गंगोही से सवाल पूछा गया। अब कुछ आप बोल बात सकता करने हूँ? दे रहे हैं? आप कुछ बोलो। आप यहाँ रुको। गंगोही को आप मुसलमान समझते हैं? गंगोही बोलो। गंगोही को काफिर समझते हैं। तो काफिर की लेकिन तो आप काफिर की बात जैसा मानोगे? आप तो काफिर की बात मानोगे? काफिर की बात काफिर के लिए दलील है, काफिर के लिए हमारे दलील लिए है? दलील नहीं। बात तो मैं जब जो जब जब आपके लिए नहीं दलील है तो आप क्यों दलील दे रहे हैं? आपको दे रहा हूं। जब आपके लिए मुझे गंगोही नहीं की चाहिए। बात दलील नहीं है तो क्यों आप गंगोही की बात की दलील दे रहे हैं? गंगोही दलील की उसकी दलील आपके लिए है, हमारी लिए नहीं। आप क्यों दलील दे रहे हैं? आप क्यों दलील दे रहे हैं? मैं दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। क्यों दे आपको रहे जो हैं? चाहिए वो दे रहा जब हूँ। आप गंगोही को मुसलमान आपको नहीं जैसा मानते कोई हैं, जब साहिल आप होगा, गंगोही को मुसलमान नहीं मानते तो उनकी साहिल बात होगा, क्यों दलील मानते सुनो, हैं? साहिल होगा, साहिल को जो चाहिए वो देना हमारा तो काम है। नहीं तो हमें जरूरत हो अरे या भाई ना, मोतबर हम आदमी की उसको बात देंगे ना। हम पसंद करें या ना ना नहीं करें। तो गंगोही को आप जो अच्छा वो गंगोही से जो सवाल किया गया था वो सवाल डाल दो फोटो कापी। तो गंगोही ने जब गंगोही को काफिर उसकी मानता फोटो हूँ, कापी उसकी दलील फोटो मैं कापी दे वो रहा और हूँ, उसकी फोटो आपको कापी आप डालिए एक साथ गंगोही ने कहाँ लिखा है। आप इसी तरह बात करेंगे, मेरा वक्त जाया हो रहा है। गंगोही की आप मैं बात किया, मैं गंगोही की आप दलील मांगता हूँ, किस किताब में लिखा? फोटो कापी आप दो। बिल्कुल बदतमीज इंसान हैं। आप हाँ, बात रखिए, झूठ बोल रहे हो, गंगोही के नाम पर झूठ बोल रहे हो। हमें पूछता हूँ उसकी दलील दो, दलील क्यों नहीं देते हो? गंगोही ने कहाँ आप लिखा है? क्यों बोल रहे हैं? चलिए फोन रखिए, आपके बात करने लायक नहीं गंगोही है। ने कहाँ लिखा है? इमाम काबा इमाम मदीना को काफिर समझते हो तो बड़े मुसलमान हो। अहले हदीस और गंगोही तरफ कैसे चले गए आप? अरे भाई हम अहले इससे क्या हदीस, लेना मैं देना? अहले मैं तो अहले हदीस हूँ। आप क्या हैं? बस अपने अहले हदीस फिरके की दिफा करिए बस। अरे भाई अहले कुफ्र हो। गंगोही, नानोतवी, आला ये उधर मत जाइए, नहीं। सिर्फ अहले हदीस के ताल्लुक से बात अरे भाई मैं करिए बस। अहले हदीस नहीं। आपके नजदीक इमाम काबा इमाम मदीना काफिर हैं और नबी रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे मुख्तार कुल पहले- मानते हो तो हुजूर इतना मजबूर है अपने सबसे इमाम को पहले- हटा नहीं सकते हैं? अच्छा, सबसे कहाँ से लेके पहले आए हो? आप 2 मिनट बोलेंगे। तो मैं यजीद 2 की जब मिनट हुकूमत आई थी, हेलो, नहीं, आप यजीद की तो आसिफ भाई हाँ चलिए आइए। हाँ आसिफ भाई का आने दो, आसिफ भाई का आने दो, बोलने नहीं दे रहे फोन। आसिफ भाई को आने दो। हाँ यजीद की जब हुकूमत आई तो बताओ। यजीद की हुकूमत आई तो जब सहाबा भी तो मतलब काफिर को काफिर ने इमामत की ना सहाबा के जमाने में। वाह भाई क्या वो वाह, हक पे था? वाह हक पे था? वाह भाई वाह। सहाबा की इमामत करने वाली काफिर? सहाबा के जमाने में यजीद ने सहाबा इमामत के की, दो तीन नहीं दिन तो सुनो। आप बड़ा अच्छा लाए हो। लेकिन सहाबा हमने नमाज 3 दिन सहाबा सहाबा ने का नहीं पढ़ी। इमामत करने वाला काफिर? वाह रे बरेलवी, कहाँ से 3 आए हो दिन तुम लोग इमामत पैदा होके नहीं। यार? उस जमाने में यजीद ने इमामत की, पूरी बात सुनो। सहाबा के जमाने में यजीद ने 3 दिन इमामत की। सभी यजीद वहाँ नमाज उनके पीछे, सहाबा उनके पीछे नमाज नहीं पढ़े। इसी तरह बरेलवी नहीं भी पढ़े? पढ़ते नहीं पढ़े? अच्छा, अबू अयूब अंसारी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? बोलो। ये मेजबान रसूल हैं। कुस्तुनतुनिया में इनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? बोलो। बात करने का जो तरतीब है ना, मैं तरतीब नहीं, उन्होंने कहा कि सहाबा ने जो काफिर नमाज पढ़ाया। आप बताओ, सहाबा पे इल्जाम लगा रहे हो। मैंने पूछा अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, जो कि मेजबान रसूल हैं, हुजूर के साथ हर गज़वे में शरीक थे। उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? किसने पढ़ाई? बताओ, बताइए। आप मुझे बताओ। मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। नहीं है। यजीद ने पढ़ाया है यजीद ने पढ़ाया? जी, किस किताब में है? सारी किताबों में है। उसका लश्कर का कमांडर कौन था, अमीर कौन था? अच्छा, बात हमारे टॉपिक वो नहीं थी। टॉपिक टॉपिक अच्छा टॉपिक, अच्छा आप टॉपिक पे आइए। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट हमारी बात सुन लो फिर बताओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल मानते हो और हुजूर इतना मजबूर हैं कि उनके मस्जिद का इमाम काफिर है। कहाँ से आए तुम? आपकी बात हुई। अब बोलो। इमाम काबा काफिर है, इसकी वजह ये है कि इब्ने ये सब वजह नहीं, हमने जो पूछा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मजबूर कर दिया है कि उनका इमाम काफिर, उनके मस्जिद का। वो तो सहाबा की औलादों को हुजूर की औलादों को काफिर कहते हो। चमार चूहड़े से तुम मुसलमान हुए, अपने आप को चमार चूहड़े से तुम मुसलमान हुए हो और अपने आप को मोमिन समझते हो और सहाबा की औलादों को काफिर समझते हो। इतने बड़े कमीने हो तुम लोग।
कहाँ से आए हो? अरे जमीन में तो आप हैं। बड़बड़ मत हैं? करो, बड़बड़ नहीं, सहाबा की औलाद को काफिर कहते हो, हुजूर के खानदान को काफिर कहते हो, तुम लोग चमार चौड़े से मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान समझते हो। इमाम काबा काफिर, इमाम मदीना काफिर, ये कहाँ ले आए? बात करने का उसूल क्या ये है? कहाँ से लेके आए तुम? बात करने का यही उसूल है कि इमाम काबा का अकीदा पूछो इनसे। बोलने नहीं दे रहा है। हाँ एक नंबर का हरामी सुअर है ये। हाँ आप हाँ। इमाम इधर के काबा बच्चे का कहीं अकीदा बताओ। हेलो जिंदगी अहले के हदीस औलाद। साहब, इमाम काबा का अकीदा बताओ। अहले सुन्नत वल जमात। हाँ बोलो। नहीं, अकीदा बताओ, अब अकीदा। इनके खिंजीर की औलाद, आप सुअर के बच्चे, जरा बात नहीं, करने नहीं, देगा नहीं, हमको नहीं, मुझे। तुम बताओ। तमीज से बात करने देगा। इतने दिन इमाम बाद तो मैं काबा बोल का रहा हूँ, अकीदा पूछो इससे, अपनी बात अकीदा। मुकम्मल अरे इमाम काबा अकीदा इमाम काबा बताएंगे, मैं बताऊंगा अकीदा। नहीं तो तुम उनकी दिफा क्यों कर रहे हो जब मैं उनका क्या- अकीदा ही आपको पता नहीं अरे है? भाई हम जानते हैं, हम हमारा जो है सबसे बड़ा अभी बताओ, काबा जो जानते हो तो बताओ। हाँ, रुक जाओ रुक वक्त जाओ जाया करने का टाइम नहीं। रुक जाओ ये रुक बात जाओ। करेगा तमीज से, हम बात करके सारी दुनिया को अरे बताएंगे। तमीज अहले किसकी हदीस है का सब मकसद जानते हैं, है। किसके पास इमाम तमीज है काबा किसके की पास खबीस- तमीज नहीं है। खबीस नजरिया इमाम काबा को जो मैं काफिर कहे उसके पास बताने तमीज होगी, ये बोलने जो नहीं सहाबा की वाला औलाद को हूँ। काफिर कहे उसके पास तमीज अगर होगी। अपने मंदिर खोलने की इजाजत दे रहे इमाम काबा। हुज्जत करेगा, हट धर्मी करेगा। इस काफिर को छोड़िए। हराम सुन जादे लीजिए को सुन लीजिए ग्रुप वालों, सऊदी अरब में इमाम इसने काबा इसने हुजूर की औलादों को काफिर कहता है, सहाबा की औलादों को काफिर कहता है, अपना चमार चूहड़ा से मुसलमान हुआ, अपने आप को मुसलमान समझता है ये। तो इमाम और काबा का अकीदा नबी बता दे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद के इमाम को काफिर कहता है, हुजूर को मुख्तार कुल कहता है।